السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا آمنت باللہ صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسولہ النبی الامین المتین الکریم، ونحن علی ذالک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ اے قول محمد قول خدا، اے قول محمد قول خدا، فرمان نہ بدلا جائے گا۔ اے قول محمد قول خدا، فرمان نہ بدلا جائے گا۔ بدلے گا زمانہ لاکھ مگر قرآن نہ بدلا جائے گا۔ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں۔ یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ آئیے ہم اور آپ معزز سامعین اکرام سمے رسالت کے پروانوں، غوث اعظم کے دیوانوں، اولیاء کرام کے ماننے والوں، میرے ملت کے نوجوانوں، آؤ اس رسول کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کریں جن کے اشارے پر ساری کائنات گردش کر رہی ہے۔ اللہ اکبر۔ نگاہ اٹھ جاتی ہے تو مادی طاقتوں کو پسینہ آنے لگتا ہے۔ کرۂ ارض پر کھڑے ہو کر اشارہ فرما دے تو ڈوبا ہوا سورج اپنی منزل پر پلٹ آتا ہے۔ آؤ اس نبی کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کریں جن کی حکومت چاند کی چاندنی پر ہے، جن کی حکومت سورج کی روشنی پر ہے، جن کی حکومت چاند کی چاندنی پر ہے، دریا کی طغیانی، سمندر کی روانی، کلیوں کی چٹک، پھولوں کی مہک پر ہے۔ آؤ اس نبی کی بارگاہ میں جی لگا کر عقیدت و محبت کے ساتھ درود پاک پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضرات محترم، بہت دیر سے آپ لوگ نعت سماعت کرتے چلے آ رہے ہیں۔ اب آئیے میں آپ کے سامنے کچھ دیر تک گفتگو کریں، پھر اس کے بعد ہم اپنی جگہ لے لیں گے۔ خاموشی سے سنیں کیونکہ یہ ادب کی محفل ہے، یہاں پر آئیں تو ادب سے آئیں، شور شرابہ نہ کریں۔ سر پر رومال، دستی، ٹوپی اگر ہو تو بڑھائے مہربانی۔ میں ان سے اپیل کرتا ہوں، گزارش کرتا ہوں کہ اپنے سروں کو چھپا لیں۔ شاعر کہتا ہے جہاں ذکر حبیب ہوتا ہے وہاں خود خدا بھی، جہاں ذکر حبیب ہوتا ہے وہاں خود خدا بھی قریب ہوتا ہے۔ ان کی محفل میں بیٹھنے والا آدمی خوش نصیب ہوتا ہے۔ درود پاک پڑھ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضرات محترم، یہ مہینہ ربیع الاول شریف کا مہینہ ہے۔ اس مہینے میں جگہ جگہ پورے دنیا کے اندر یہ محفل پاک کا انعقاد کرتے ہیں۔ یہ محفل
बाबरकत महफिल है। इस महफिल का इनेकाद, इस महफिल का जश्न खुद रब्बे कायनात ने मनाया। ये महीना 12 रबीउल अव्वल शरीफ का महीना चलता है। इस महीने में 12 तारीख को हमारे और आपके आका पैगंबर आदम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जलवा गरी हुई। जब सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस रूह ज़मीन पर आ रहे थे तो रब्बे कायनात ने इरशाद फरमाया, ए फरिश्तों के सरदार जिब्रील, जाओ, मेरे महबूब की आमद होने का वक्त आ गया। ए जिब्रील जाओ, ये झंडे ले लो, 3 झंडा ले लो। एक झंडा बैतुल मुक़द्दस की छत पर नस्ब कर देना, एक झंडा हज़रत आमिना के आंगन में नस्ब कर देना, एक झंडा खाने काबा की छत पर नस्ब कर देना। रब्बे कायनात जब अपने महबूब की आमद का वक्त आ गया तो सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब इस रूह ज़मीन पर आ रहे थे तो रब्बे कायनात ने जिब्रील को अलम दिया, ए जिब्रील जाओ, ये 3 झंडा ले लो और नस्ब कर दो। तो पता ये चला कि झंडा लगाना रब्बे कायनात की सुन्नत है। अगर ये झंडा लगाना गलत होता तो रब्बे कायनात झंडा न लगवाता। ये झंडा लगाना जिब्रील की भी सुन्नत है। मेरे मिल्लत के नौजवानों, तो इस महीने की 12 तारीख को हमारे और आपके आका पैगंबर आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जलवा गरी हुई। आज जिसे हम उम्मते मुहम्मदिया कहलाते हैं, आज पूरे दुनिया में अल्लाह के नबी का जिक्र हो रहा है और होना भी चाहिए। मुसलमानों, इसी को शायर कहता है, निसार तेरी चहल पहल पर, निसार तेरी चहल पहल पर हजारों ईदे रबीउल अव्वल, सिवाय इब्लीस के जहां में सभी तो खुशियां मना रहे हैं। रब्बे कायनात का महबूब जब इस रूह ज़मीन पर आ रहा है तो आज जिसका तुम जलसा कर रहे हो, जिसका तुम जिसकी महफिल सजाए हो, इसी महफिल को मानने रब्बे कायनात का महबूब आज अपने उम्मत को याद कर रहा है, अपने माँ के सिकम से आ रहा है। रब्बे कायनात का महबूब रूह ज़मीन पर अपने सर को रख दिया और सर रख दिया और जब सजदा करता हुआ नजर आ रहा है। सजदा करने के लिए शर्त है कि जमीन पाक हो, लिबास पाक हो, जगह पाक हो। और रब्बे कायनात के महबूब सजदा करके बता दिया, ए दुनिया वालों सुन लो, मैं भी पाक हूँ, मेरी माँ भी पाक है और मेरा लिबास भी पाक है, मेरा जिस्म भी पाक है। रब के महबूब सजदा करते हुए नजर आ रहे हैं। रब्बे कायनात का महबूब सजदा कर रहा है। सजदे में क्या पढ़ रहा है? रब्बे हबली उम्मती पढ़ रहा है, रब्बे हबली उम्मती पढ़ रहा है। सरकार खुद फरमाते हैं, बुखारी की हदीस है, जो इलत लिल्लाह लिल अर्दे मस्जिदन, पूरी रोह ज़मीन मस्जिद बना दी गई है। अल्लाहु अकबर। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस गुनहगार उम्मत को क्यों याद कर रहे हैं? एक मरतबा हज़रत अब्दुल मुत्तलिब तवाफ कर रहे हैं। तवाफ करते करते क्या देखते हैं? अल्लाहु अकबर, खाने काबा सजदे में जा रहा है, खाने काबा सर झुका रहा है। तो अल्लाहु अकबर, सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद का वक्त आ गया था। अल्लाह के नबी, अल्लाह के महबूब के दादा सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दादा हज़रत अब्दुल मुत्तलिब तवाफ कर रहे थे। हज़रत अब्दुल मुत्तलिब तवाफ करते करते क्या देखते हैं कि खाने काबा अचानक मुंह के बल आ गया है। तेरी आमद थी कि बैतुल्लाह मुजरे को झुका, तेरी हैबत थी कि हर बुरतरा थरथरा कर गिर गया। हज़रत अब्दुल मुत्तलिब सोचने लगे, अब तो दीवार रेजा रेजा हो जाएगी, ईद टूट जाएगी, गरीबी का आलम है, किस तरह काबा की तामीर की जाएगी। अल्लाहु अकबर। अभी तो काबा खड़ा था, अचानक क्या हो गया? हज़रत अब्दुल मुत्तलिब सोच रहे थे। हज़रत अब्दुल मुत्तलिब से एक लौड़ी सरकार हज़रत अब्दुल मुत्तलिब से अर्ज करती है, अब्दुल मुत्तलिब, आपके मक्का की सरजमीन पर एक हसीन और जमील बच्चा पैदा हुआ है, इतना खूबसूरत बच्चा पैदा हुआ है, आपका पोता आया है, आमिना का लाल आया है, अब्दुल्ला का बेटा आ रहा है। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दादा हज़रत अब्दुल मुत्तलिब समझ गए और अर्ज करते हैं, ए मक्का वालों सुन लो, कसम खुदा की काबा गिरा नहीं था, बल्कि काबा सजदे में झुका था। मेरे पोते मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत बाशहादत का वक्त आ गया था। तो आला हज़रत खान फरमाते हैं, आला हज़रत खान फरमाते हैं, हाजी वाओ शहंशाह का रोजा देखो, काबा तो देख चुके, काबे का काबा।
हज़रात गिरामी, मैंने जिस आयत पाक की तिलावत करने का शरफ हासिल किया, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इरशाद फरमाता है व इन तउद्दू निअमतल्लाहि ला तुसूहा, अगर तुम अल्लाह की नेमतों को शुमार करना चाहो, गिनना चाहो तो नहीं शुमार कर पाओगे, नहीं गिन पाओगे। सरकार दो आलम नहीं गिन पाओगे। इंसानों की क्या मजाल कि उसकी नेमतों को शुमार कर सके। अल्लाह आप अंदाज़ा लगाइए, आप निगाह दौड़ाइए, आप जिधर अपनी निगाह को दौड़ाइएगी, निगाह दौड़ाइएगा, उसकी नेमत का दिन नजर आएगा। आसमान उसकी नेमत, जमीन उसकी नेमत, हवा उसकी नेमत, सूरज उसकी नेमत, चांद उसकी नेमत, बिस्तर उसकी नेमत, बिछौना उसकी नेमत, पानी उसकी नेमत, खाना उसकी नेमत, आँख उसकी नेमत। इंसानों को रब्बे कायनात ने हर नेमतों से माला माल फरमाया, हर नेमतों से नवाजा, मगर कहीं ये नहीं फरमाया ए मेरे बंदो तुम पर मेरा एहसान है। लेकिन सुनो सुनो, जब रब्बे कायनात अपने महबूब को इस रुए जमीन पर मबूस फरमा रहा है तो रब ताला इरशाद फरमा रहा है लक़द मन्नल्लाहु अलल मुमिनीना इज़ बअस फ़ीहिम रसूला। अल्लाह का बड़ा एहसान हुआ मुसलमानों पर, मोमिनों पर, उन्हीं में से एक रसूल को मबूस फरमाया। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को 12 रबीउल अव्वल शरीफ के महीने में 12 तारीख को जलवगर कर रहा है। सरकार की तशरीफ आवरी पर एहसान जताकर सरकार की तशरीफ आवरी को जब दुनिया में महबूब फरमा दिया तो पूरे दुनिया वाले को बता दिया। तो इसी को आला हज़रत खान फरमाते हैं सबसे औला वाला हमारा नबी, सबसे आला वाला हमारा नबी, सबसे बाला वाला हमारा नबी, अपने मौला का प्यारा हमारा नबी। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, सरकार की आमद, दीनदार की आमद, जश्न ईद मिलादुन नबी, नारे तकबीर, नारे रिसालत। आइए उलमाए किराम मिलाद पर बोलेंगे। आइए मैं कुछ नमाज के ताल्लुक से बयान कर दूं। दरूद पाक पढ़े अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मौलाना मौलाना नबीना वारिक वसल्लम सलातो व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आज हम नमाज नहीं पढ़ते। आज क्यों परेशान नजर आते हैं? इसकी वजह ये है, मैं आपको बताता चलूँ। मदरसे बनते हैं, मदरसे बनाने में इख्तिलाफ, मस्जिद बनती है, मस्जिद बनाने में इख्तिलाफ, घर बनता है, घर बनाने में इख्तिलाफ, घर की खिड़की निकालने में इख्तिलाफ, रास्ता बनता है, रास्ता बनाने में इख्तिलाफ करते हैं। आज पूरे दुनिया के अंदर क्यों मुसलमान परेशान नजर आ रहा है? इसकी वजह यह है कि आज कुछ लोग वलियों की वलायत से इनकार करते हुए नजर आते हैं, कुछ लोग नबियों की नबुवत से इनकार कर रहे हैं, कुछ लोग खुदा की वहदानियत से इनकार कर रहे हैं। इसके वजह से पूरी दुनिया परेशान नजर आती है। मुसलमानों, आज हम नमाज नहीं पढ़ते, आज इसी वजह से हम परेशान नजर आते हैं। मुसलमानों, अगर तुम चैन सुकून चाहते हो तो आओ रब की बारगाह में अपने सर को झुका दो। रब्बे कायनात का फरमान है मेरा बंदा अगर नमाज के बाद जो मुझसे कुछ मांगता है मैं उसे अता करता हूँ। नमाज के बाद दुआ रद्द नहीं होती बल्कि कबूल होती है। नमाज मोमिन की मेराज कहा गया। क्यों कहा गया? नमाज सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अस्सलातु मिराजुल मुमिनीन, नमाज मोमिन की मिराज है। यही मिराज इसलिए कहा गया कि इसी उम्मत के लिए 26वीं तारीख को रब का महबूब पैगंबर आदम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने इसी गुनहगार उम्मत को लेने के लिए रब की बारगाह में गया, ये तोहफा लेकर आया। लेकिन 50 वक्त की थी, लेकिन 50 वक्त में से 45 वक्त की नमाज को माफ करा दिया। लेकिन फिर भी आज हम 5 वक्त की नमाज नहीं पढ़ते। इसकी वजह से हम परेशान नजर आते हैं। मुसलमानों, नमाज पढ़ो और नमाज अहमुल फराइज है। नमाज पढ़ना मुसलमान पर फर्ज है, मर्द औरत पर फर्ज है। इसी सिलसिले में फरीदुद्दीन सकर का याद आ गया मुझे वाकया।
बचपन का ज़माना है, माँ फरमाती हैं बेटे नमाज पढ़ो। फरीदुद्दीन अर्ज करते हैं अम्मी जान नमाज क्या है? माँ फरमाती हैं बेटे नमाज अहमुल फराइज़ है, नमाज अल्लाह का फरीज़ा है। बच्चे अर्ज करते हैं अम्मी अगर हम नमाज पढ़ेंगे तो हमें क्या मिलेगा? माँ फरमाती हैं बेटे अल्लाह तुमसे नाराज़ हो जाएगा। फरीदुद्दीन अभी बचपना है, अपने माँ से कहते हैं अम्मी हम नमाज पढ़ेंगे तो क्या हर वक्त कहती रहती नमाज पढ़ो, लेकिन माँ के अंदर नमाज पढ़ने का देखिए किस तरह अंदाज अपने बच्चे को नमाज का आदी बनाती है। उस वक्त फरीदुद्दीन शक्कर बहुत पसंद करते थे, चीनी बहुत पसंद करते थे। माँ मौके गनीमत समझती है, अर्ज करती है ए फरीदुद्दीन तुम शक्कर बहुत पसंद करते हो? कहा हम भी मैं शक्कर बहुत पसंद करता हूँ। कहा बेटे अगर तुम नमाज पढ़ोगे तो अल्लाह तबारक व तआला तुम्हें शक्कर अता फरमाएगा। अब बच्चा शक्कर की लालच में नमाज की तरफ मुखातिब हो जाता है, मुतवज्जह हो जाता है। माँ अपने बच्चे को किस तरह नमाज का आदी बनाती है, अर्ज करती हैं बेटे अगर कोई आज हम बच्चे से काम करवाने के लिए कहें ए बच्चे ये इतना यहाँ से ईंट वहाँ रख दो, ये इतना पैसा ले लो, इतना इस चॉकलेट के लालच में वो काम करने के लिए तैयार हो जाता है। उसी तरह फरीदुद्दीन शक्कर के लालच में नमाज की तैयारी में लग जाते हैं। माँ फरमाती है ए मेरे बच्चे फरीदुद्दीन वहाँ शक्कर वहाँ पे नल पे चले जाओ, वहाँ ओजू तुम इधर ओजू करने में लग जाओ, इधर मैं मुसल्ला बिछा देती हूँ, मुसल्ला बिछा कर तैयार कर देती हूँ। इधर फरीदुद्दीन ओजू करने में लग जाते हैं, उधर माँ मुसल्ला बिछाती है। मुसल्ला बिछाने के बाद एक शक्कर की पुड़िया बात कर उसी मुसल्ला के नीचे रख देती है। उसके बाद से अर्ज करते हैं अम्मी जान मैं ओजू से फारिग हो चुका हूँ। माँ बड़े अदब एहतराम के साथ अर्ज करती है ए मेरे बच्चे फरीद मैंने आपके लिए मुसल्ला बिछा दिया है, जा तू मुसल्ला पर जा। मुसल्ला पर जा रहे फरीदुद्दीन रब की बारगाह में नमाज पढ़ते हैं, नमाज से फारिग होते हैं। जब मुसल्ला माँ फरमाती है ए बच्चे दुआ से फारिग होने के बाद मुसल्ला उठा लो। मुसल्ला उठाते हैं, नमाज के बाद एक शक्कर की पुड़िया पाते हैं उसके नीचे। मायूस अल्लाहु अकबर, बच्चे का दिल खुश हो जाता है। इसलिए कि जो बच्चे से काम करवाने के लिए कहे और काम करने के बाद वो मिल जाता है, बच्चा लालच में खुश हो जाता है। फरीदुद्दीन के अंदर दिल के अंदर समझ में आ गई कि अब तो मेरा रब मुझे शक्कर दे दिया है, अगर हम इसी तरह नमाज पढ़ते रहेंगे तो मेरा रब मुझे शक्कर अता करता रहेगा। अब ये दस्ते मामूल बन गया। माँ अपने बच्चे को रोजाना वजू में लगा देती थी, ए बच्चे उधर वजू तुम करो, इधर मैं चुपके से मुसल्ला बिछा देती हूँ। अल्लाहु अकबर। मुसल्ला बिछाने के बाद फरीदुद्दीन और मुसल्ला पर जाते थे, नमाज की तैयारी में नमाज पढ़ते थे। इसी तरह नमाज पढ़ते रोजाना मुसल्ला उठाते, शक्कर पाते, खुश हो जाते हैं, नमाज के आदी बन जाते हैं। अल्लाहु अकबर। माँ फरमाती वजू के नमाज की आदी बन जाते हैं। अब इसी तरह दोस्तों के साथ एक दिन अपने साथ बाहर टहलने लगते हैं, खेलने के लिए चले जाते हैं। इतने में अजान का वक्त हो जाता है, नमाज का वक्त हो जाता है। फरीदुद्दीन तो नमाज पढ़ने में लग जाते हैं। फरीदुद्दीन तो नमाज के आदी हो गए थे, अपने दोस्त अहबाब के साथ खेल रहे थे। खेलते खेलते वक्त हो जा रहा है और अर्ज करते हैं फरीदुद्दीन अल्लाहु अकबर, ए मेरे दोस्तों आओ वक्त हो गया, नमाज पढ़ लेते हैं। इतना कहकर हौज पर जाते हैं। हौज पर जाने के बाद वजू करते हैं, वजू करने के बाद सीधे घर आते हैं। घर भी आने के बाद मुसल्ला बिछाते हैं, मुसल्ला बिछाने के बाद नमाज पढ़ते हैं, नमाज पढ़ने में लग जाते हैं। अल्लाहु अकबर। माँ देखती है, माँ का दिल घबराने लगता है, अब क्या होगा? मेरा बेटा रोजाना वजू करता था, अब मैं चुपके से मुसल्ला बिछा देती थी, मुसल्ला के नीचे शक्कर की पुड़िया माँ रख देती थी। आज मेरा बच्चा नमाज से फारिग होगा, मुसल्ला उठाएगा, शक्कर
शक्कर नहीं पाएगा तो मायूस हो जाएगा। अगर मैं सामने शक्कर रखूं तो राज खुल जाएगा। माँ का मेरा बच्चा कहेगा माँ शक्कर तो आप रखा करती थी और कहती थी रब्बे कायनात दे रहा है। अब अल्लाह अकबर, माँ के दिल के अंदर घबराहट होती है। माँ का दिल मुतमईन होने, अब वो समझ, माँ का दिल सोच में पड़ जाता है अब मेरा बच्चा नमाज पढ़, नमाज से फारिग होगा, मुसल्ला उठाएगा नहीं पाएगा तो मायूस हो जाएगा। इधर माँ भी वुजू करती है, वुजू करने के बाद मुसल्ला बिछाती है, मुसल्ला पर नमाज के लिए खड़ी हो जाती है। इधर बच्चा नमाज पढ़ रहा है, इधर माँ नमाज पढ़ रही है। माँ रब्बे कायनात की बारगाह में अपने हाथों को बुलंद करती है और अर्ज करती है रब्बे कायनात मेरी लाज रख ले, मेरा काम था यहाँ तक लाना, अब आगे बढ़ेगा, आगे अब तेरा काम है इसकी हिदायत देना, अब इसका काम मेरा यहाँ तक लाना था, अब इसके बाद तेरा काम है देखना। मेरा बच्चा आज मैं काम में बिजी थी, आज मैं काम में व्यस्त थी, आज मैं उतना मुझे टाइम ना मिली थी कि मैं अपने बच्चे के लिए मुसल्ला बिछाकर शक्कर की पुड़िया बात कर रख दूं। आज मेरा बच्चा वुजू कर आया है, आज नमाज से फारिग होकर नमाज पढ़ने के बाद नहीं हो पाएगा तो मायूस हो जाएगा। आज मैं कौन सा चेहरा अपने बच्चों को भी दिखाऊंगी और मेरा बच्चा क्या कहेगा। रब की बारगाह में दुआ कर रही है। रब्बे कायनात ने जिब्रील अमीन को इरशाद फरमाया, ए सिदरा के मकीन जिब्रील जाओ फला यहाँ तुम शक्कर का हौज ले लो, शक्कर का बोरा ले लो, वहाँ फला यहाँ चले जाओ। फरीदुद्दीन नमाज से फारिग होते हैं, बल्कि उठा रहे हैं तो देखते हैं कि आज शक्कर की पुड़िया नहीं मिल रही है, बल्कि आज मुझे हौज मिल रहा है, यानी इतना शक्कर मिल गया। अल्लाह अकबर। माँ से अर्ज करते हैं अम्मी जान क्या बात है, आज मेरा खुदा मुझसे कितना राजी हो गया। आज रोजाना एक शक्कर की पुड़िया देता था, आज तो मुझे इतना दे दिया कि मैं इतना खुश हूँ। आज लग रहा है मेरा रब मुझसे इतना राजी हो गया है। माँ अर्ज करती है बच्चे असल बात ये है कि रोजाना तुम वुजू करते थे, मुसल्ला मैं चुपके से बिछाती थी, शक्कर की पुड़िया मैं चुपके से रखती थी, तुम्हें ये राज मैंने नहीं बताया था। मैं समझा कि आप नमाज पढ़ते हो, आप नमाज तो पढ़ रहे हैं, शक्कर तो आपको चाहिए था, शक्कर मिल रहा था, लेकिन आज तुम वुजू करके आए थे तो रब्बे कायनात ने मेरी लाज रखी है। अल्लाह अकबर। माँ से वादा करते हैं फरीदुद्दीन, ए मेरी वालिदा मैं आपसे अहद करता हूँ कि इसी तरह मैं नमाज पढ़ता रहूँगा तो मेरा रब मुझसे राजी हो जाएगा, इसी तरह हमको शक्कर की पुड़िया देता रहेगा। तो पता चला मुसलमानों, जिस तरह रब अपने फरीदुद्दीन से राजी हो गया, तुम भी फरीदुद्दीन के नक्शे कदम पर चलो। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। उलमाए किराम, सरकार की आमद, दिलदार की आमद, जश्न आमद सरकार। नारे तकबीर। हजरात मोहतरम, मैं अर्ज कर रहा था कि जिस तरह फरीदुद्दीन रब को राजी किए, उसी तरह मुसलमानों तुम अपने महबूब को राजी कर लो, अपने रब को राजी कर लो। अल्लाह तबारक व तआला जब तुमसे राजी हो जाएगा तो दुनिया तुम्हारी हो जाएगी और आखिरत तुम्हारा हो जाएगा। मुसलमानों, ये जिक्र महफिल मना रहे हो, मनाओ, लेकिन इसके साथ साथ इस पर अमल करो। जो उलमा बयान करते हैं, अर्ज करते हैं, इस पर अमल करो, इसको भी मनाओ और जो नमाज वगैरह है उसको भी अपने ना उसको अंजाम देते रहो, ताकि आज हमारा समाज सुधर जाए। आज हम परेशान हाल जो नज़र आ रहे हैं, आज हम परेशानी से निकल जाएं। जिस तरह फरीदुद्दीन से रब्बे कायनात राजी हो गया था, उसी तरह आज तुम मुसलमान करो ताकि रब तुमसे राजी हो जाए। और जब रब राजी हो जाएगा तो समझ लो दुनिया तुम्हारी और आखिरत तुम्हारा हो जाएगा। मैं यहीं से अपनी गुफ्तगू ख़त्म करता हूँ, क्योंकि उलमाए किराम की फ़हरिस्त ज़्यादा है। फिर इंशाअल्लाह कभी मौका मिला तो आगे बयान होगा। वह अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाता है, व इन तउद्दू निअमतल्लाहि ला तुहसूहा, अगर तुम अल्लाह की नेमतों को शुमार करना चाहो तो नहीं शुमार कर पाओगे। ये इसी महीने में रब का महबूब 12 तारीख को सरकार की आमद हुई। तो आओ सरकार के उम्मतियों, आपकी बारगाह में दुआ करता हूँ। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु इलैह। बोलने में किसी
لفظاً صحباً خطاً غلطی ہو گئی ہو، علماء کرام کے سامنے میں توبہ کرتا ہوں۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔